Hello student. Subject history chapter 5 social and religious reform. So in the previous lesson we learned about the freedom struggle of 1857. So now today we are going to study about religious reforms and social reforms. Okay. So let's start. Along with spread of English education, there was a spread of new thoughts, new ideas, new philosophy. Indians were also introduced to Western thoughts and culture. Due to it, there were changes in social, religious, economic, and culture aspect of Indian society. So, with the spread of English education in India, there was spread of new ideas, new thoughts and new philosophy. So, जब हमारे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन जब स्प्रेड होने लगा तो उसी के वजह से न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स एंड न्यू फिलोसॉफी स्प्रेड होने लगी. इंडियंस गॉट इंट्रोड्यूस टू वेस्टर्न थॉट एंड कल्चर और इसी के वजह से इंग्लिश एजुकेशन के वजह से इंडियाज़ को या इंडियंस को न्यू थॉट्स वेस्टर्न न्यू थॉट्स एंड न्यू कल्चर्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया. This associations was responsible for changes in social, religious, economical and cultural aspect of Indian society. So इसी के ज़रिए इंडियन सोसाइटी में कुछ न्यू न्यू चेंजेस करने के कुछ आइडियाज़ मिले, लाइक सोशल चेंजेस, रिलीजियस चेंजेस, इकोनॉमिकल एंड कल्चर चेंजेस ये सोसाइटी में होने लगे. द मॉडर्न educated Indian became aware that the backwardness of India was due to superstition, casteism, old customs, class system, and lack of critical outlook. It was necessary to eradicate the flaws and undesirable tendency for progress of the country and to create a new society based on the principle the of the humanity, equality and fraternity. The educated thinkers started social awareness through writings to solve the various problems in the society. The intellectual awakening in the contemporary society is called a Indian Renaissance. So what is a Renaissance? Renaissance means the modern education India's realized the unhealthy society condition had arrested the progress of India. So मॉडर्न इंडिया को मॉडर्न एजुकेटेड बनाने के लिए इंडियंस को ये रियलाइज़ हुआ कि सोशल कंडीशंस ये क्या हो सके उसमें प्रोग्रेस होनी चाहिए. इसके लिए कुछ चेंजेस करने पड़े, लाइक कास्टेसिज्म, सुपरस्टिशन, ओल्ड कस्टम, क्लास सिस्टम एंड लैक ऑफ क्रिटिकल आउटलुक पोस्ट अ ग्रेट चैलेंजेस फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया. सो कास्टेसिज्म, सुपरस्टिशन एंड कस्टम, क्लास सिस्टम ये सब हमारे इंडिया में था. सो इसमें चेंजेस करना या इसे चैलेंज करना ये मेन इम्पॉर्टेंट रोल था. It was necessary to eradicate these shortcoming and undesirable tendency in order to create a new society based on a principle of humanity, equality and fraternity. So हमारे इंडिया को मॉडर्न इंडिया बनाने के लिए या उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए हमारी जो टेंडेंसी थी, हमारी इंडियंस की जो टेंडेंसी थी उसमें चेंजेस करना बहुत इम्पोर्टेंट था. और इसी के लिए 3 important principles यूज़ किए गए: ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी एंड फैटर्निटी. इट्स अ मोस्ट important principle. To make the society free from these evils, the educated thinkers started social awareness through writers. So इसी के लिए मीन्स ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी बढ़ाने के लिए हमारे इंडिया का मॉडर्न सोसाइटी बनाने के लिए जो हमारे इंडियन थिंकर्स थे, जो एजुकेटेड थिंकर्स थे, उन्होंने सोशल अवेयरनेस दिखाया. मीन्स कुछ राइटिंग थ्रू लोगों को इंकरेज किया. दिस इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन रिनाइसेंस. और इसी इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग को क्या कहा जाता है? इंडियन रिनाइसेंस कहा जाता है. सो ईरा ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म. सो देखो अभी हम सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में देखने वाले हैं और कौन कौन से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स किए गए उन्हीं के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. इन 1828 राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश्ड द ब्राह्मो समाज इन बंगाल. He studied many languages and religions through in his ideology of Advaita philosophy was developed.
monotheism, caste and class equality, protest against ritual and following the way of prayer were the principle of Brahmo Samaj. He opposed sati practice, child marriage, next Purdah system. He promoted widow remarriage and female education. He founded Hindu college in Kolkata. He created public awareness through the newspaper Samvad Kaumudi. So Brahmo Samaj. What is a Brahmo Samaj? So Brahmo Samaj is started 1828 by Raja Ram Mohan Rai. So राजा राम मोहन राय ने इन्हें 1828 में ब्राह्मो समाज को इस्टेब्लिश किया. सो फर्स्ट इज अ डेवलपमेंट आइडियोलॉजी ऑफ अद्वैता. सबसे पहले तो अद्वैता आइडियोलॉजी डेवलप की गई. नेक्स्ट मोनोथिज्म, कास्ट एंड क्लास इक्वेलिटी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल एंड एडवोकेटेड वे ऑफ प्रेयर टू वर्कशिप ऑफ गॉड. सो इसी अद्वैता डेवलपमेंट में इक्वेलिटी या प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना और गॉड प्रेयर करना, ये यहाँ पे स्टार्ट किया गया. अपोज चाइल्ड मैरिज, सती एंड पुरदह सिस्टम. सो इसी ब्राह्मो समाज में चाइल्ड मैरिज को अपोज किया गया. नेक्स्ट सती एंड पुरद सिस्टम को भी अपोज किया गया. एडवोकेटेड विडो रीमैरेज एंड फीमेल एजुकेशन. और इतना ही नहीं, ब्राह्मो समाज में जो विडो रीमैरेज है उसे एक्सेप्ट किया गया, फीमेल एजुकेशन को भी दिया गया. फाउंडेड हिंदू कॉलेज एट कोलकाता. ब्राह्मो समाज में राजा राम मोहन राय इन्होंने कोलकाता में हिंदू कॉलेजेस भी फाउंडेड किए. क्रिएटेड पब्लिक अवेयरनेस थ्रू हिज न्यूज़पेपर सोमत कौमुदी. और इतना ही नहीं, राजा राममोहन राय थ्रू जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए गए संवाद कौमुदी, सो इसी थ्रू पब्लिक अवेयरनेस भी किया गया. नेक्स्ट पॉइंट इज अ प्रार्थना समाज. सो प्रार्थना समाज, दादोबा पांडुरंग तरखड़कर इस्टेब्लिश परमहंस सभा in Mumbai in 1848. Later, Paramhansa Sabha was dissolved and some of its members founded the Prarthana Samaj. Dadoba's brother, Dr. Atmaram Pandurang, was the first president of Prarthana Samaj. The prestige of the institution increased due to the enrollment of young graduates from Mumbai University. Justice Ranade, Dr. R.G. Bhandarkar carried forward the work of the Prarthana Samaj. The opposition to ideal worship, monotheism, oppositions to ritual were the principle of Prarthana Samaj. They stressed on devotions and prayer for reforming the society. Next, Prarthana Samaj started orphanage, women's education institutes, night school for workers and society for Dalit. Maharshi Vittal Ramji Shinde, a member of Prarthana Samaj, established depressed classes mission. Through the mission, an attempt was made to solve the social problems. So, Prarthana Samaj established in 31st July 1849 by Dadoba Pandurang तरखड़कर. सो दिस इस्टेब्लिशमेंट इन मुंबई, कहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की गई? 1848 में मुंबई में ये इस्टेब्लिशमेंट की गई. सो उसी के बाद 31 मार्च 1867 में इसी प्रार्थना समाज को कन्वर्ट किया गया, परमहंस सभा को कन्वर्ट किया गया प्रार्थना समाज में. 31 मार्च 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तरखड़कर इनके थ्रू. सो ये प्रार्थना समाज क्या था, इसके मेन मोटिव क्या था? सो अपोज आइडियल वर्कशिप, रिचुअल, एडवोकेट्स मोनोथिज्म एंड फॉलोड द वे ऑफ प्रेयर. सो जो आइडियल वर्कशिप्स है, रिचुअल्स थे, उन्हें अपोज करना एंड प्रेयर्स को फॉलो करना, ये मेन मोटिव था. नेक्स्ट,
नेक्स्ट मोटिव, स्टार्टेड ऑर्फनेज वुमेन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्कूल फॉर वर्कर्स एंड सोसाइटी फॉर दलित. सो प्रार्थना समाज, इसी में जो ऑर्फनेज थे, ऑर्फनेज स्टार्टेड किया गया. नेक्स्ट वुमेंस एजुकेशंस वहाँ पे स्टार्ट किया गया. मीन्स वुमेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्फनेज इंस्टीट्यूशन वहाँ पे स्टार्ट किया गया प्रार्थना समाज में. स्कूल फॉर वर्कर्स एंड सोसाइटी फॉर दलित, जो दलित लोग थे या जो वर्कर्स थे उनके लिए स्कूल यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए. महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे, जस्टिस रानडे, डॉक्टर R.G. भंडारकर कैरिड फॉरवर्ड द वर्क ऑफ द प्रार्थना समाज. और इसी प्रार्थना समाज को हैंडल करने के लिए महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे, जस्टिस रानडे एंड डॉक्टर R.G. भंडारकर, ये सब एक साथ आके यहाँ पे प्रार्थना समाज को हैंडल कर रहे थे. नेक्स्ट पॉइंट इज द सत्यशोधक समाज. So Mahatma Jyotirao Phule started the Satyashodhak Samaj in 1873. So महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज को इस्टेब्लिश किया. सो सत्यशोधक समाज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी ऑन बेसिक ऑफ इक्वेलिटी. दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. They advocated educations among the depressed classes and women. Mahatma Phule performed the society through the medium of book like ब्राह्मणाचे कसाब, नेक्स्ट गुलामगिरी, नेक्स्ट शेतकऱ्यांचे आसूड अँड सार्वजनिक सत्य धर्म. He several criticized the tradition and custom that made discrimination between man and woman, or rather human beings himself. So Satyashodhak Samaj, so this is established in 1873. महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने 1873 में इसे इस्टेब्लिश किया. एंड इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वेलिटी इन सोसाइटी. सो ये किसके लिए स्टार्ट किया गया और इसका मेन प्रिंसिपल क्या था? सोशल इक्वेलिटी. सोसाइटी में लोगों को सोशल इक्वेलिटी मिल सके या वर्क में सोशल इक्वेलिटी हो, ये मेन प्रिंसिपल था. प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, यहाँ पे अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट किए गए. मीन्स उनके अगेंस्ट सोसाइटी स्टार्ट की या कुछ स्ट्रगल स्टार्ट की. ही अपोज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन and criticize the tradition and custom which discriminated between man and woman. So महात्मा फुले, इन्होंने मैन एंड वुमन, इनमें जो डिस्क्रिमिनेटेड था या कस्टम या ट्रेडिशन में जो कुछ भी डिस्क्रिमिनेट था, तो इनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेट थे इन्हें अपोज करने के लिए महात्मा फुले इन्होंने क्रिटिसाइज किया या कुछ एक्शन ली. ही रिफॉर्म सोसाइटी थ्रू हिज बुक लाइक ब्राह्मणाचे कसाब, गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचे आसूड एंड सार्वजनिक सत्य धर्म. सो महात्मा फुले इन्होंने अपने बुक्स थ्रू लोगों को इंस्पायर किया या लोगों को रिफॉर्म करने का डिसीजन लिया. जैसे कि ब्राह्मणाचे कसाब, गुलामगिरी, सत्यशोधक आसूड, ये सब महात्मा फुले के बुक्स थे. इन्हीं के थ्रू रिफॉर्मेशन स्टार्ट किया गया. नेक्स्ट पॉइंट इज द आर्य समाज. आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875. सो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज को इस्टेब्लिश किया, इसका रिफॉर्म किया. ही रोड द बुक सत्यार्थ प्रकाश एज अ कमेंटरी ऑन वेदास. सो ये सत्यार्थ प्रकाश, ये बुक स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने राइट किया था और उसमें वेदास के बारे में कमेंटरी की थी. ओके, एनिशियंट वैदिक रिलीजन इज ट्रू रिलीजन्स विच हैड नो प्लेस फॉर कास्टिसिज्म एंड देयर एग्जिस्टेंट जेंडर इक्वेलिटी. गो बैक टू द वेदास was the slogan of आर्य समाज. आर्य समाज का एक स्लोगन था, गो बैक टू द वेदास. वेदास में किसी भी तरीके से मैन एंड वुमेन्स के अनइक्वेलिटी नहीं दिखाई दी है, जेंडर इक्वेलिटी के बारे में वहाँ पे कुछ शो नहीं किया, तो वो इज बेस्ट है. सो इसीलिए आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने एक स्लोगन राइट किया था, गो बैक टू द वेदास.
The branches of आर्य समाज वेयर ओपन ऑल ओवर इंडिया. सो वेदा आर्य समाज के जो ब्रांचेस है वो ऑल ओवर इंडिया में हर एक जगह पे ओपन किए गए. मेनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वेयर इस्टेब्लिश थ्रू द मीडियम ऑफ आर्य समाज. सो आर्य समाज के अलग अलग इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए हैं हर एक जगह पे. नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन. सो रामकृष्ण मिशन वॉज इस्टेब्लिश बाय स्वामी विवेकानंद. सो ये जो रामकृष्ण मिशन है ये स्वामी विवेकानंद थ्रू इस्टेब्लिश किया गया. और क्लोज डिसिप्लिन ऑफ रामकृष्ण परम A close discipline of Ramakrishna Paramhansa in 1897. Ramakrishna Mission work for service to the society. The mission work for providing help to the famine stricken people, next patient, medical help to the poor, female education and spiritual growth. Swami Vivekanand was an excellent orator. He attained the Parliament of Religions at Chicago in 1893 as a representative of Hinduism. Arise, awake, and stop not till the goal in achievement was the message given by him to the Indian youth. So, Ramakrishna Mission. रामकृष्ण मिशन के बारे में हमें यहाँ पे ये बताया गया. 1897 में स्वामी विवेकानंद थ्रू ये रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया गया. इट प्रोवाइडेड हेल्प फॉर अ फेमाइन स्ट्रिकन पीपल. सो ये किसके लिए प्रोवाइड किया गया रामकृष्ण मिशन? इसमें जो फेमाइन स्ट्रिकन पीपल्स थे उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया था. सो जो पेशेंट है, मेडिकल हेल्प टू द पुअर पेशेंट, ओके. नेक्स्ट, फीमेल एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ. इन सब के बारे में रामकृष्ण मिशन में डिसीजन लिया गया या उसके बारे में सोचा गया. Next, he was a representative of Hinduism in the Parliament of Religious held at Chicago in 1893. 1893 में जब एक पार्लियामेंट थ्रू हिंदुइज्म में एक स्पीच दी गई थी और उसी स्पीच में स्वामी विवेकानंद इन्होंने अपना मैसेज दिया था. ही गेव द मैसेज टू द इंडियन यूथ, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इन अचीव. सो स्वामी विवेकानंद इन्होंने लोगों को एक मैसेज दिया था कि अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव. ये मैसेज लोगों को दिया गया था. नेक्स्ट, सिंह सभा. Social reform among the Sikh. The Singh Sabha was established at Amritsar to achieve reform in Sikh religion. This institution worked for spread of education among the Sikh community and bring in modernizations among them. Later, the Akali movement continued their tradition of reformation. So, Singh Sabha ये 1817 में स्टार्ट की गई एंड इस्टेब्लिश एट अमृतसर टू अचीव रिफॉर्म इन सिख रिलीजन. सो सिख रिलीजन के लिए यहाँ पे सिंह सभा ये इस्टेब्लिश की गई ताकि अमृतसर में जो सिख है उन सबकी उन सबकी डेवलपमेंट हो. इट्स एम वॉज टू स्प्रेड एजुकेशन. ये सोशल रिफॉर्म अबाउट सिख के लिए जो सिंह सभा स्टार्ट की गई थी इसका मेन एम क्या था कि लोगों को एजुकेशन मिल सके, सिख कम्युनिटी एंड ब्रिंग इन अ मॉडर्नाइजेशन. सो सिख कम्युनिटी ये मॉडर्न बने या मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न सोसाइटी में वो आगे बढ़े. इसी के लिए ये सिंह सभा ये इस्टेब्लिश की गई थी. So student, I hope you understood about the reformation. Next video I will give you information about emancipation of women, chapter 5. Thank you.